अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अंदरून 9 यौम रियासत के किसानों के अकाउंट में रैतू भरोसा स्कीम की रकम जमा की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों को दिया तयख़ून। मरकजी वजीर व रुकन पार्लिमान किशन रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल का किया दौरा। मुख्तलिफ महकमों का किया मुआयना। तेलंगाना के ब्रांड इमेज के लिए 100 बार जेल जाने को तैयार हूं। कारगुजार सदर BRS के TR फार्मूला ई कार रेस में CBI के रूबरू हुए पेश। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री के नताइज जारी। फर्स्ट ईयर में 66% और सेकंड ईयर में 51% तुलबा हुए कामयाब। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, बर वक्त की गई चेकिंग। जिले मलगू में DEO सरकारी टीचर से रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। महकमे तालीम में भी रिश्वत का बाजार है गरम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अंदरून 9 यौम 9,000 करोड़ रुपये 70,11,984 किसानों के खाते में जमा करवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रैतू निस्तम प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने किसानों को तयख़ून दिया कि ये रैतू भरोसा है, रियासत के किसानों को आपके भाई की यकीन दहानी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कमाने वाले की इज़्ज़त नफ्स के लिए, उसके पसीने के ख़तरों के लिए आवाम की हुकूमत की तरफ से दी गई ये यकीन दहानी है। భూమి అనేది మీకు ఇండ్ల పట్టా అనేది ఇందిరమ్మ ఇల్లు అనేది ఇందిరమ్మనే ఇచ్చింది. ఆనాడు దొరల దగ్గర భూస్వాముల దగ్గర వేలాది ఎకరాలు ఉంటే అగ్రికల్చర్ సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఆ భూములన్నీ తీసుకొని పేదోళ్లకు అసైన్మెంట్ పట్టాల పేరు మీద పంచిపెట్టారు. అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆదివాసులకు, లంబాడ సోదరులకు పోడు భూముల పట్టాలు ఇచ్చి వాళ్ళని భూ యజమానులను చేసింది. ఇల్లు లేనోళ్లకు ఇంటి పట్టా ఇచ్చింది. ఇల్లు కట్టుకోలేనోళ్లకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టించింది. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అన్నాడు. ఎవరికన్నా ఇక్కడ ఉన్న పేద రైతుకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చినాదే. కానీ ఇవాళ లక్షలాది ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇవ్వడానికి మనం ముందుకు వచ్చినాం. మీరు ఇండ్లు కట్టుకోండి, ఒక ఇంటి వాళ్ళు కాండి, ఉన్న ఊర్లో ఇల్లు, ఇంత వ్యవసాయ భూమి అనేది మన ఆత్మగౌరవం. అంతకుమించి రైతులు ఏం కోరుకుంటలేరు. వాళ్ళు కష్టపడ్డ పంటకు వాళ్ళు గిట్టుబాటు ధర అడుగుతారు. అవి కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం లేదు. మిమ్మల్ని ఆదుకుంటుంది, మీకు అండగా నిలబడుతుంది. పంట మార్పిడి చేయండి. మీరు ఏం పండించినా పంట మనం కొనుగోలు చేయడానికి అవసరమైన కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తాం. నాకు మంచి టీం ఉన్నది, మంచి మంత్రులు ఉన్నారు, అనుభవం కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నాకు మంత్రిగా అనుభవం లేకపోవచ్చు, కానీ అనుభవం కలిగిన మంత్రులు పెద్దలందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరి సహకారంతో ఒక మంచి పరిపాలన అందించి తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడే విధంగా, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ దేశంలోనే మొదటి స్థానంగా ఉండే రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఎవరు ఎన్ని గోల పెట్టినా, ధర్నాలు చేసిన, రోడ్డు మీద బండి దొల్లినా, తొడుక్కున్న బట్టలు చించుకున్నా 10 ఏళ్ళు మన ప్రభుత్వమే ఉంటుంది. నేను ఈ మాట చెప్పదలుచుకున్నా. कारगुजार सदर BRS के T रामाराव फार्मूला ई रेस के इस मामले में ACB के रूबरू एक मरतबा फिर पेश हुए। इस मौके पर KTR ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्हें हासिल करने से कुछ हासिल नहीं होगा और इन इल्जामात का पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। उन्होंने CM रेवंत रेड्डी पर भी शदीद तनकीद की। कहा कि रेवंत रेड्डी वल्दी इंतखाबात को मौखर करने के लिए BRS लीडरान को हरासा कर रहे हैं, कानून और अदालतों का एहतराम करते हैं और जितनी बार भी पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा वो हाजिर होंगे। और मजीद कहा कि तेलंगाना के लिए पहले भी जेल में वो जा चुके हैं और दोबारा जेल जाने से नहीं डरते। KTR तेलंगाना भवन से रवाना होने से कबल मीडिया से बात कर रहे थे। విచారణకు పిలిచినా వస్తామని చెప్పినా ఇది మూడోసారి పిలవడం, 3 సార్లు కాదు 30 సార్లు పిలిచినా విచారణకు సహకరిస్తాం. మా మీద కేసులు బనాయించి
మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టి కమిషన్లు వేసి మమ్మల్ని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టినంత మాత్రాన, వేధించినంత మాత్రాన ప్రజల తరపున ప్రశ్నించడం బంద్ చేస్తామనుకుంటే అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క అవివేకం, అజ్ఞానం అవుతుంది తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. పెద్దలు కేసీఆర్ గారిని, పెద్దలు హరీష్ రావు గారిని కాళేశ్వరం కమిషన్ ముందు కూర్చోబెట్టి మీరు పైశాచికానందం పొందొచ్చు. ఇవాళ ఏసీబీ ముందుకి విచారణకు పిలిపించి కొంత మానసికంగా రాక్షసానందం పొందుతూ ఉండవచ్చు, అవసరమైతే అరెస్ట్ కూడా చేస్తారు కావచ్చు. కానీ ఒకటి పక్క, తెలంగాణ కోసం గతంలోనే జైలుకు పోయి వచ్చిన వాళ్ళం. హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ను పెంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా హైదరాబాద్ బ్రాండ్ని కాపాడే క్రమంలో తీసుకున్న ఒక నిర్ణయం వల్ల మళ్ళీ జైలుకు పోవాల్సి వచ్చినా భయపడేది లేదు. ఒకసారి కాదు, 100 సార్లైనా జైలుకు పోతాం, కానీ వదిలిపెట్టాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని, కాంగ్రెస్ పార్టీని. మీరిచ్చిన 420 హామీలు, మీరిచ్చిన దొంగ 6 గ్యారంటీలు, మీరిచ్చిన డిక్లరేషన్లు ఇవాళ మీరు లోకల్ బాడీ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతా ఉన్నారని చెప్పి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్ను మొత్తం రాష్ట్రంలోని బీసీ వర్గాల ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నారు. 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తాం అని కామారెడ్డి డిక్లరేషన్లో చెప్పి మోసం చేసి ఈరోజు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు మరి రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండానే పోతున్న వైనాన్ని కూడా బీసీలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. రైతు బంధు పేరిట ఎలక్షన్ బంధుగా మార్చి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే రైతు బంధు వేస్తున్న విషయాన్ని రైతులు గమనిస్తున్నారు. నెలకు 2500 ఎగ్గొట్టిన విషయాన్ని ఈ రాష్ట్రంలోని మహిళలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలని చెప్పి నువ్వు చేసిన మోసాన్ని ఈరోజు రాష్ట్రంలోని मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल का दौरा किया, जो खित्ते के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल के अहाते का मुआयना किया और हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट और दीगर तिब्बी अमले से मुख्तलिफ महकमों के बारे में मालूमात इकट्ठी की। उन्होंने कोविड-19 वबा के दौरान कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का भी दौरा किया। उन्होंने महकमे सेहत के अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की। శ్యామ్ సుందర్ గౌడ్ గారు, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సూపరింటెండెంట్ గారు, ఆర్ఎంఓ గారితో కలిసి విజిట్ చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్లో సౌకర్యాల విషయంలో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పేషెంట్స్ కూడా అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది. సూపరింటెండెంట్ గారితో కలిసి కొంతసేపు చర్చించాము. ఇక్కడ సిబ్బంది పరిస్థితి ఏంది, ఇతరత్ర కూడా తెలుసుకున్నాము. ఇంకా ఇంతమంది వేల మంది పేషెంట్స్ వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు పేషెంట్స్ కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలను, పేషెంట్కి ఇచ్చేటువంటి ట్రీట్మెంట్లు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ పోతూనే ఉండాలి. దీనికి ఎండ్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వనరుల దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని రకాల సౌకర్యాలు మెరుగుపరుచుకుంటూ పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రధానంగా పేషెంట్స్ కానీ ఇతర చెప్పడం ఏంటంటే సిబ్బంది కొరత కొంత ఉంది. అది ఆర్ఎంఓల కొరత కావచ్చు, లేకపోతే స్టాఫ్ నర్స్ కొరత కావచ్చు. ఆ విషయం కూడా నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో, మిగతా సంబంధించినటువంటి మంత్రితో కూడా మాట్లాడతాను. కొంత యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద సిబ్బంది కొరతను మరి తగ్గించి बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर फार्मूला ई रेस केस में एसीबी के दफ्तर में हाजिरी से कबल सुबह 10 बजे तेलंगाना भवन पहुंचे। इस मौके पर केटीआर के हमरा हरीश राव भी मौजूद थे। उन्होंने तेलंगाना भवन में पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात की। केटीआर की आमद पर पार्टी कारकुनान केटीआर और बीआरएस की तायद में नारे भी लगा रहे थे।
तेलंगाना ऑटो यूनियन फेडरेशन में शामिल कई एसोसिएशंस के अरकान ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जियो 263 पर अपना शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए उसके निफाज के ख़िलाफ़ खैरताबाद RT ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। फेडरेशन के सदर मोहम्मद इब्राहिम अहमद की क़यादत में मुनक़्क़िद किए गए इस धरने में बड़ी तादाद में ऑटो ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। बादशाह मोहम्मद इब्राहिम अहमद ने मीडिया को तफसील से भी वाकिफ़ करवाया। Hyderabad, Greater Hyderabad, pollution से बचाओ। हाँ भाई आ जाओ अंकल, ऐसा आ जाओ, बैनर नहीं दिख रहा, सीधा पकड़ो भाई। ग्रेटर हैदराबाद को आलूगी से बचाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवाहर नगर और कापरा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रेवेन्यू के अहदेदारों की जानिब से बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाइयाँ की गई। सर्वे नंबर 158 में की गई इन्हदामी कार्रवाई को गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी बताया गया है। ఇది జాగా కాలిందనా रियासती जमाल पी श्रीनिवास रेड्डी ने KTR के हरासानी के इल्जाम को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि KTR फार्मूला ई कार केस में ACB के रूबरू पेशी के वक्त गैर जरूरी ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है KTR अपने वालिद केसीआर के नक्शे कदम पर चलते हुए इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सियासी इंतखाम पर यकीन नहीं रखती और न ही हुकूमत ACB की कार्रवाइयों में मदाखलत करती है।
शहर हैदराबाद में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए पुलिस ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। 2023 के मुकाबले 2024 और 2025 में ट्रैफिक चालानों की तादाद में इजाफा देखा गया है। हकाम के मुताबिक 2024 में हेलमेट ना पहनने के बायस 25 लाख चालानात किए गए। इसी तरह मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने वालों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई हुई, जिसके तहत 68,048 अफराद को चालान किया गया। 2023 में ट्रैफिक चालानात की तादाद 19.1 लाख रही, जबकि 2024 में इसकी तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इससे ज़ाहिर होता है कि 2024 और जारिया साल 2025 में हैदराबाद में ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी में नुमाया इजाफा हुआ है। बीआरएस लीडर KTR के ACB के रूबरू पेश होने के दौरान तेलंगाना भवन के करीब वाक़ई नीलोफर कैफे को आर्जी तौर पर बंद किया गया। KTR की तेलंगाना भवन में आमद के बायस बीआरएस कारकुनान का हुजूम था और सिक्योरिटी इक़दाम के तहत पुलिस ने कैफे में मौजूद ग्राहकों को बाहर निकलने की हिदायत दी और ज़बरदस्ती कैफे को बंद करवाया गया। पुलिस का कहना है कि इम्कानी एहतजाज या हंगामाराई के पेश नज़र चंद अफराद को हिरासत में भी लिया गया। बीआरएस हेडक्वार्टर के अतराफ तनाव के माहौल को देखते हुए पुलिस ने तेलंगाना भवन, नंदीनगर और दीगर करीबी मकामात पर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए थे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के दौरों के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बायस हकाम ने चौकसी इख्तियार की है। DGP हरीश कुमार गुप्ता ने इंटेलिजेंस चीफ को इस मामले में जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू जब अजला के दौरे पर जाते हैं तो आमतौर पर GMR कंपनी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, ताहम इस हेलीकॉप्टर में बार बार तकनीकी खराबियां पेश आने की वजह से हुकूमती हलकों में तशवीश पैदा हो गई है। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री नतायज जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नतायज दोपहर 12 बजे जारी किए। फर्स्ट ईयर के नतायज 67.4% और सेकेंड ईयर के नतायज 51.7% रहे। रियासत भर में इम्तिहानात 22 मई से 29 मई के दरमियान मुनक़िद किए गए थे। इस साल उम्मीदवारों की तादाद में नुमाया इजाफा भी देखा गया था कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में न सिर्फ नाकाम तलबा ने शिरकत की, बल्कि वो तलबा भी शरीक थे जिन्हें अपनी शरह नताइज को बेहतर करना था। मजमूई तौर पर 4.2 लाख तलबा ने सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत की थी। नताइज बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब हैं।
निर्मल जिले के खानापुर मंडल के राजूरा गांव में गवर्नमेंट स्कूल की इमारत बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने 40 लाख रुपए का बिल ना मिलने पर स्कूल की गेट को ताला लगा दिया। बतौर एहतजाज स्कूल की गेट के सामने पेट्रोल से भरा हुआ एक बोतल लेकर वो बैठ गया और अपने किए गए काम के बिल वसूल ना होने पर खुदकुशी करने की धमकी दी। कॉन्ट्रैक्टर जी श्रीनिवास ने गेट को ताला लगाने पर तकरीबन 2 घंटे तक तलबा और टीचर्स ने स्कूल के बाहर खड़े होकर इंतज़ार किया। तफसीलात के मुताबिक मुतासर शख्स ने बताया कि उसने स्कूल की डाइनिंग हॉल और किचन मुकम्मल तज़यीन व आराइश, पंखे और ट्यूबलाइट्स लगाने के लिए मना ओरू मनाबड़ी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 40 लाख रुपए की सरमायाकारी की और वो मखरूज हो गया। मुतासरा ने कहा कि अगर उसका बिल अदा ना किया गया तो वो यहाँ पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लेगा। खातून बस ड्राइवर सरिता ने तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की है। वाज़ेह है कि भुंगरी जिले की नारायणपुरम मंडल की रिहायशी सरिता ने कल तेलंगाना आरटीसी में पहली खातून बस ड्राइवर के तौर पर खिदमत का आगाज किया है। तेलंगाना के ज़िले मलगू ज़िले में एक सरकारी टीचर से रिश्वत लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO पाइनी को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ जूनियर असिस्टेंट दिलीप को भी हिरासत में लिया गया। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक जब हरजे DA को पाइनी को 20,000 रुपये रिश्वत दे रहे थे तभी ACB के DSP की क़यादत में एक टीम ने रंगे हाथों ने पकड़ लिया। फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना पुलिस गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का बाकायदा आगाज कर रही है। इस सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ को 17 जून मंगल गवाही के लिए तलब किया गया है। फोन टैपिंग केस में साबिक़ BRS हुकूमत में मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, जजों, सनअतकारों और फिल्मी शख्सियात के फ़ोन कॉल गैर कानूनी तौर पर टेप किए जाने का इल्ज़ाम है। इस केस में पुलिस के कई अफसरान के नाम भी शामिल हैं। सदर दफ्तर ख़ज़ात जहानुमा जोन ग्रेटर हैदराबाद की इत्तला के मुताबिक मुफ्ती हाफिज़ सैयद नईमुल्लाह शाह क़ादरी कामिल उल-फ़क़ा जाम निज़ामिया को मोहल्ले जात बहादुरपुरा, किशनबाग और अतराफ़ व अकनाफ़ के लिए नायब क़ाज़ी मुक़र्रर किया गया है। आवाम को इत्तला दी गई है कि वो उख़ूत की तकमीला के लिए नायब क़ाज़ी मुफ्ती हाफिज़ सैयद नईमुल्लाह शाह क़ादरी से मोबाइल नंबर 9603916152 पर रब्ता कर सकते हैं या फिर बिलमुशाफ़ा सदर दफ्तर ख़ज़ात जहानुमा जोन वाक़े हिल्स कॉलोनी नवाब साहब कुंटे पर भी रब्त किया जा सकता है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक वाक़े में 2 नौजवान जिनमें एक राउडी शीटर भी शामिल है उसने एक दीगर नौजवान पर हमला करते हुए उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अरे ऐसा नहीं है, वो छुड़ा
जरा हटो हीरो। तो मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। मैं वादिया सालेन में रहता हूँ, फेज 2 में। एजाज नाम का एक बच्चा है, रॉडी शूटर है, उन्हें भी चोर है। मैं कल रात में दुकान को जा रहा था, रुका के एक उसका दोस्त था, उन्हें रुका के मेरे को आवाज़ दिया, बात कर रहा था। एजाज घर में से पीछे से लेके आके चाकू मार दिया पीछे से। वो पुरानी दुश्मनी थी, वो रमजान में जो लड़ लिए थे उसकी वजह से पैसों के वास्ते हैरेसमेंट कर रहा था उन्हें, एजाज और आसिफ। हाँ नहीं, अब जेल में, अब जेल में। आसिफ क्या होना इधर से भाई हो ना, उनके खलेरे कुछ भाई है। हाँ वो पुरानी दुश्मनी की तरफ से मारे। कितने टाके लगे? 12 टांके लगे सर को। नाक पे फ्रैक्चर हो गया, गनेट से मारा उन्हें, यहाँ पर हाथ पे चाकू से मारा। 2 जने थे, एक एजाज था और एक का नाम नहीं मालूम। दोनों पीछे नाजिब भाई के ऑफिस का नहीं, शराब पी लेते बैठे थे गली में। हाँ अभी बालापुर भी इसमें कंप्लेंट करे। भाई मैं वादे सालेन में रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ऐसा हरासमेंट करके बच्चे को मारे रात में। इससे पहले भी जो है ना, ऐसी घर पे आके मार देता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ बोल के। कौन मारे, कौन बोले? ये एजाज नाम है और एक पहले आए थे वो आसिफ बोल के नाम था। अब तो वो आसिफ नहीं है, अब तो उन्होंने जेल में है। ये एजाज बोल के है। इन्हें दोनों आए थे इससे पहले आके पैसे दो, वो दो, ये दो बोल के, कई को लड़े झगड़े बोल के 10,000 रुपये दिए थे हम लोग आपको। 10,000 रुपये किस लिए दिए थे? ये नहीं मारना, नहीं मारते बोल के बोले थे। नहीं मारते, तुम्हारे बच्चों के नाम पे नहीं जाते हम लोग आपसे, तुम पैसे दे दो, नहीं तो गाड़ी दे दो, नहीं तो फोन दे दो, बोले तुम पैसे दे दिए थे उनको। दिए थे पैसे? और आसिफ को और इसको, ये एजाज को। कब दिए थे? ये रमजान में दिए। तो उसके बाद नाम पे नहीं आए। उसके बाद क्या 3-4 दिन से क्या कर रहे हैं, अब वो बच्चे को पकड़ ले रहे हैं, पीछे भिजा रहे हैं बच्चों के, हमारे दूसरे बच्चे के मारने के आसे। उन्होंने उधर गली में से घर को आ रहे हैं। तो अब बकरीद के दिन इन्हें एजाज मेरे को भी पकड़ा था, क्या चिचा खैरियत क्या हुए बोल के आ रहा था। मैं गली में चलेगा, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं चलेगा। फिर उन्होंने उधर वापस पलट के चलेगा। अब रात में इन्होंने घर में से बाहर निकले, इनको जो है सो पकड़ लिए। पकड़ के जो है सो क्या बोले कि अब इनको मालूम, हम तो नहीं थे, घर में थे हम। कौन पकड़ लिए? ये एजाज पकड़ लिया है, जो पुलिस वाले पकड़ के लाए ना, रात में मारे थे। एजाज पकड़ लिया था, उनके साथ और एक भी बच्चा था, नाम तो नहीं मालूम उनका। और रात में इनको मारे, ग्रेनेड डाल दिए, चाकू लेके मारे, चाकू हाथ पे मारे, चाकू से यहाँ मारे, पीछे उल्टी चाकू से गर्दन पे मारे थे, गिर गए नीचे। गिर के बाद ऐसा ग्रेनेड लेके हाथ से ऐसा ग्रेनेड डाल दिए, ऐसा फेंके नहीं, ऐसा हाथ से मार दिए। तो ये पीछे पूरा सर फ्रैक्चर होगा। और छोटे पत्थर से ऐसा मारे, घप्पू मारे, तो ये हड्डी फ्रैक्चर हो गई यहाँ की। यहाँ मार पड़ा, यहाँ 10-12 टाके लगे। बालापुर PS में कंप्लेंट दिए। ऐसी खींच ले रहे हैं मार के बस्ती में। आप जाके पूछ लो बस्ती में पूरे, किसका नहीं फोन दिखा, खींच ले रहे हैं, पैसे दो बोल के खींच ले रहे हैं, नहीं दिए तो मार रहे हैं। कोई से भी बच्चा रहे तो हमारे बच्चा बोल के नहीं, कोई सा भी बच्चा फोन लेके निकलने दो, कुछ भी रहे तो रोड पे, शाम होते रोड पे ठहर जा रहे हैं, गलियों में ठहर जा रहे हैं, फोन खींच ले रहे हैं बच्चों के, नहीं दिए तो मार रहे हैं। आसिफ नामी रॉडी शूटर की वजह से एक बच्चे के ऊपर नाजायज जुल्म हो गया। हमारे भैया ये उन्हें जो है सो एक इजाज नामी बच्चे को घर पर भिजा के उसका हाफ मर्डर कराने लगा, डाल के बच्चे की नाक फोड़ दिए, पूरा सर जो है सो फाड़ दे के कर दे के जो है सो बिलाश हो गया पूरा, हर चीज़ को जो है सो। और एक बार नहीं 10-10 बार जो है सो हम लोग आसिफ के नाम पे कंप्लेंट दिए हुए ऑलरेडी। परसों जो है सो 2 दिन पहले आसिफ को जेल को भिजाए। जेल को भिजाने के बाद में 2 दिन के बाद में एक बच्चा इजाज नामी आके जो है सो ये बच्चे से पैसे का मुकाबला कर रहा, कह के आसिफ मियाँ को बेल कराना रहता, पैसे दियो। और ये एक के संगात नहीं है, ये हर किसी के संगात है। वादे सालहीन फेज 2 फेज 1 ये हर किसी के सुबह लोगों के घरों में घुस जा रहे हैं लोग। 5 बजे 6 बजे टाइमिंग की लिमिट नहीं है बच्चों की। ये ऐसा पूरा गैंग लेके चला रहे हैं। और गंजटियों का अड्डा बनाने वाला आसिफ, वादे सालहीन में पूरे हर चीज़ का शौक हो रहा। देखने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। देख के हद ये हो गई। एक बेचारे बर्मा वाले का मर्डर हो गया,
ये बर्मा आलम के जो सो बच्चे का मर्डर हो गया, इससे पहले निसार बोल के बच्चे का मर्डर आसिफ करने वाला, इसकी हद इतनी बढ़ गई। एक्टिव रॉडी शीटर है, 10 बार बोल रहा हूँ मैं। हर सीआई साहब जितना कोऑपरेट करना था कर रही नहीं बोल के नहीं, मैं जितना कानून का जितना इस्तेमाल होना चाहिए वो मेरे नज़र में नहीं हो रहा। 5-5, 6-6 केस अभी भी बुक है उसके ऑलरेडी, उसको महीने 1.5 महीने में आ जा रहा, फिर जो सो 2 काम मर्डर करके खामोश चले आ रहा हो। उसका हद इतनी हो गई किसी की, अब इतना होगा लोग वादे साल है इनसे घर खाली करके जा रहे हैं। अभी तक कईयों लोगों को मैं मेरे आंखों रियासत तेलंगाना के निजामाबाद शहर में एक चौंकाने वाला हादसा उस वक्त पेश आया जब एटीएम में जमा कराने के लिए लाई गई रकम को लेकर सिक्योरिटी एजेंसी का मुलाजिम फरार हो गया। इत्तलात के मुताबिक एल्लम्मा गुट्टा में वाक़ एक एजेंसी में काम करने वाला रमाकांत गुज़श्ता 5 सालों से खिदमात अंजाम दे रहा था और हाल ही में इसे बैंक के एटीएम्स में रकम लोड करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत वो 40 से 50 लाख रुपए ले जा रहा था। ताहम रकम ले जाने वाली गाड़ी में ताख़ीर होने पर रमाकांत मौके का फ़ायदा उठाया और पूरी रकम के साथ फरार हो गया। बताया गया कि 40,50,000 रुपए रकम लेकर वो फरार हुआ है। एजेंसी के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अंदरून 9 यौम रियासत के किसानों के अकाउंट में रैतू भरोसा स्कीम की रकम जमा की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों को दिया तय खून। मरकजी वजीर व रुकने पार्लिमान किशन रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल का किया दौरा, मुख्तलिफ महकमों का किया मुआयना। तेलंगाना के ब्रांड इमेज के लिए 100 बार जेल जाने को तैयार हूँ। कारगुजार सदर बीआरएस के टीआर फार्मूला ई कार रेस में सीबीआई के रूबरू हुए पेश। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री के नताइज जारी। फर्स्ट ईयर में 66% और सेकंड ईयर में 51% तुलबा हुए कामयाब। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, बर वक्त की गई चेकिंग। जिले मलगू में डीईओ सरकारी टीचर से रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। महकमे तालीम में भी रिश्वत का बाजार है गर्म। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।